So this is again very important topic, but this is much more important for your board exam as compared to your competitive exams. So let us wait for a few seconds and then we'll start the class. Anomalous behavior of lithium. Okay, let's wait for a few seconds so that other students may join also. बेसिकली मैं यहाँ पे पूरी टेक्स्ट को इन डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैं पूरी टेक्स्ट को इन डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, लाइक जेई होता है, आपका नीट होता है, वहाँ पे इनऑर्गेनिक में आपको टेक्स्ट के बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इनऑर्गेनिक में टेक्स्ट के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता। तो इट इज डायरेक्टली फ्रॉम कॉपी पेस्ट, इट इज डायरेक्टली कॉपी पेस्ट फ्रॉम टेक्स्ट. So let us start the class. The class is S block elements, lecture 07, anomalous behavior of lithium. So let us start the class. Wait one second. Okay, now let us start the class. Anomalous behavior of lithium. तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट का एनॉमलस बिहेवियर पढ़ते हैं, जो भी हमारे ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल में होते हैं, जो पहला मेंबर होता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप दैट डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप, तो उसी को कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर. तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर अल्कली मेटल्स. हम डिस्कस कर रहे हैं अल्कली मेटल्स. तो वी नो दैट इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स वी आर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजन. ये जो पहला मेंबर है इसको कहते हैं हेड ऑफ फैमिली. दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ फैमिली. So this first member, it differs from the rest of these members. The first member of each group, it differs from the rest of the members. उसी डिफरेंस को कहते हैं anomalous behavior. वही हमें एक्सप्लेन करना है. उसी को कहते हैं anomalous behavior. That's known as anomalous behavior. That's known as anomalous behavior. So this is anomalous behavior. What's anomalous behavior? Difference of first member from the rest of members of the family. तो why this lithium shows anomalous behavior? जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है, why it differs from the rest of the family. तो इसका anomalous behavior जो है, लिथियम का anomalous behavior जो है, it is because of two reasons. तो आप लिख सकते हो anomalous behavior या lithium differs from rest of elements of group first because of following reasons. Because of, so basically यहाँ पे दो reasons है. Because of that reasons lithium differs from the rest of elements of group first elements. So what are those reasons? Number first, जो भी पहला element होता है, जो भी हमारा पहला element होता है, अगर हम down the group जाएंगे तो what happens? Size increases. We know that size increases. तो जो भी पहला element है इसका size बहुत कम होता है. तो आप देखो number first reason is small size of lithium atom. Small size of lithium atom or ion. Small size of lithium atom or ion. अगर हम एटम की बात करेंगे इसका साइज स्मॉल होता है बिकॉज साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप. तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल साइज दैट लिथियम डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मेंबर्स. अभी देखेंगे व्हाई बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज. स्मॉल साइज से क्या क्या हो सकता है. नंबर सेकंड, हाई पोलराइजिंग पावर. हाई पोलराइजिंग पावर. हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम आयन. लिथियम आयन का हाई पोलराइजिंग पावर. थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे पोलराइजिंग पावर को. ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है. पोलराइजिंग पावर जो होता है ये दो चीज पे डिपेंड करते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज बाय साइज. मतलब अगर कम इसको कहते हैं चार्ज डेंसिटी. दिस थिंग इज नोन एज चार्ज डेंसिटी. चार्ज बाय साइज इज नोन एज एक्टिवली योर चार्ज डेंसिटी. दिस इज चार्ज डेंसिटी. So polarizing power is because of charge density. तो जो charge density है it depends upon two things, charge and size. तो देखिए कि यहाँ पे lithium का size जो है it's very very small. That's why it has high polarizing power. And because of this high polarizing power, it shows difference from the members, rest of the elements of members of family. तो देखो शायद
Actually, we are we are discussing anomalous behavior. Anomalous behavior means unique behavior. So unique behavior means how this first element it differs from the rest of the elements. तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली लिथियम का डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं यूनिक बिहेवियर ऑफ लिथियम और एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, हाउ लिथियम डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम फैमिली. तो बाई कोई भी एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट जो है ग्रुप का, वाई इट डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ टू रीजंस. तो ये जो दो रीजन है, इट इज बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ लिथियम एटम, इसको डिस्कस करेंगे अभी. एंड द सेकंड वन इज हाई पोलराइजिंग पावर. पोलराइजिंग पावर जो है, पोलराइजिंग पावर डिपेंड्स अपॉन चार्ज बाय साइज. पोलराइजिंग पावर जो है इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज बाय साइज. पोलराइजिंग पावर डिपेंड्स अपॉन चार्ज बाय साइज. तो अगर चार्ज यहाँ पे ज्यादा है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, अगर चार्ज साइज कम है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा. दिस थिंग इज नोन एज चार्ज डेंसिटी. क्लियर साहिल. तो इसको आप डिस्कस करते हैं, इन दो फैक्टर्स की वजह से क्या क्या डिफरेंसेस हो सकती है. what differences can arise because of these two factors, small size, what factor. So let us see what type of differences can arise because of these two factors, small size and high polarizing power. We'll see because of these two factors what type of differences will arise. So let's explain. Because of these two factors the following differences arise. तो लिखो, because of these two factors the following differences arise. यहाँ तक क्लियर है. Lithium differs from the rest of the family. Lithium shows anomalous behavior because of two things, small size of lithium atom or ion, high polarizing power. ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है, the anomalous behavior of lithium is due to small size of lithium and it is due to high polarizing power. यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. अगर यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड. नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल साइज. तो यहाँ पे लिखो नंबर फर्स्ट पॉइंट, लिथियम जो है इट इज वेरी हार्ड. लिथियम इज मच हार्डर. और अदर अल्कली मेटल्स जो है दे आर सॉफ्ट. अदर अल्कली मेटल्स बोले तो हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो है दे आर लेस हार्ड. मतलब दे आर सॉफ्ट, यूजुअली लेस हार्ड. जैसे कि आपने बचपन से पढ़ा है, वी कैन कट द सोडियम विद द हेल्प ऑफ नाइफ. तो यहाँ पे लिथियम जो है इट इज मच हार्डर. लिथियम ज्यादा हार्ड होता है. नंबर सेकंड पॉइंट आप लिखो, जब भी हम लिथियम को ऑक्सीजन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखूंगा, इंपॉर्टेंट जो है वही लिखूंगा बिकॉज इसमें 30-40 भी पॉइंट्स आ सकते हैं. जब भी हम लिथियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, एक्सेस एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो व्हाट इज फॉर्मूला? लिथियम फॉर्म्स ऑक्साइड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड? Li2O. लिथियम फॉर्म्स ऑक्साइड. तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, जो हमारा एयर है इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, इजंट इट? जो हमारा एयर है, एयर कंटेन्स 79 और 79% ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ 78 to 79, तो इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा. तो यहाँ पे एक और कंपाउंड बन सकता है, दैट इज लिथियम नाइट्राइट, Li3N. दिस इज नोन एज लिथियम नाइट्राइट. तो लिथियम फॉर्म्स व्हेन इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. एक आपका बनता है लिथियम ऑक्साइड, एक बनता है लिथियम नाइट्राइट. लिथियम इज द ओनली metal in the group which forms nitrite. Other elements do not form nitrites. तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखो, lithium is the only metal among S block elements, sorry, among alkali metals, not S block. S block में group second भी आएगा. Among alkali metals which forms Li3N. Other elements do not form. जो अदर एलिमेंट्स है दे डू नॉट फॉर्म. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिथियम इज द ओनली एलिमेंट दैट फॉर्म्स लिथियम नाइट्राइट. अदर अल्कली मेटल्स दे डू नॉट फॉर्म. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको नीट लिख के रखो, कभी भी आ सकता है.
the only alkali metal that combines with oxygen to form two compounds A and B. The compounds are, तो यहाँ पे आपको लिथियम मोनोक्साइड बनेगा और लिथियम नाइट्राइड बनेगा। जो रेस्ट मेंबर्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है। तो इनमें हमने देखा था दे फॉर्म peroxides and they form superoxides, isn't it? लिथियम डज नॉट फॉर्म peroxide and superoxide, that's the difference। तो ये डिफरेंस किसकी वजह से आती है? Why this difference? कोई बता सकेगा why this difference? तो मैंने एक्चुअली एक्सप्लेन किया है why lithium does not form peroxide and superoxide। तो एक्चुअली लिथियम का साइज जो है, इसका साइज स्मॉल है। तो अगर इसका साइज स्मॉल है, it can form crystal lattice readily with small sized O minus। स्मॉल, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे चार्ज Li2O, तो यहाँ पे आपका +2 1 2 प्लस, यहाँ पे 2 माइनस होगा। दिस इज स्मॉल साइज्ड ऑक्साइड आयन। तो स्मॉल साइज्ड ऑक्साइड आयन से इसकी पैकिंग अच्छी होती है रादर देन इन सुपर ऑक्साइड लार्ज साइज्ड सुपर ऑक्साइड आयन होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये बात आपको क्लियर होगी। क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं यहाँ पे जो भी एक्सेप्शंस लिखूंगा ना, जो भी यहाँ पे एनॉमलस बिहेवियर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा, दे आर इंपॉर्टेंट। तो अदरवाइज देयर कैन बी 30-40 डिफरेंसेस। ओके, सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। ये सब बच्चों को कंफर्म होना चाहिए। अगर लिथियम को ऑक्सीजन के साथ मतलब एयर के साथ रिएक्ट करेंगे, इफ यू रिएक्ट लिथियम विद एयर, तो एयर कंटेनर्स इन एयर में जो क्वांटिटी होती है दैट्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मतलब ज्यादा क्वांटिटी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की होती है, इजंट इट? एयर में ज्यादा क्वांटिटी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की होती है, इजंट इट? तो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म मोनोऑक्साइड Li2O। अगर नाइट्रोजन एयर के नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। सो लिथियम इज द ओनली एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप दैट फॉर्म्स नाइट्राइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द ओनली एलिमेंट फ्रॉम अल्कली मेटल्स दैट फॉर्म नाइट्राइड इज Li3N, लिथियम नाइट्राइड। दिस इज द ओनली एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप दैट फॉर्म्स नाइट्राइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बाकी जो मेंबर्स हैं, रेस्ट मेंबर्स जो हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दे फॉर्म peroxides एज वेल एज सुपरऑक्साइड्स। दे फॉर्म peroxides एज वेल एज सुपरऑक्साइड्स। तो ये लिथियम हमारा peroxide और सुपरऑक्साइड क्यों नहीं बनाता है? तो इसके लिए आप देख सकते हो, यू कैन वॉच माय लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 ऑफ एस ब्लॉक। तो वहां पे इन डिटेल इसको एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस वाज वन डिफरेंस। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर लिथियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे टू कंपाउंड्स आर फॉर्मड। तो क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड लाइक दिस, व्हेन लिथियम बर्न्स इन ऑक्सीजन, मतलब एयर, अगर लिथियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, देन टू कंपाउंड्स आर फॉर्मड, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी। व्हाट आर द कंपाउंड्स? तो ऑप्शन यहाँ पे मैं दूंगा, द कंपाउंड्स आर Li2O2 प्लस Li3N। ऑप्शन नंबर सेकंड में दूंगा LiO2 प्लस Li3N। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में यहाँ पे दूंगा Li2O प्लस Li3N। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज Li2O प्लस LiN3। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो बाकी अल्कली मेटल, हाँ वो बताऊंगा ना क्यों नहीं बनाते हैं, वो भी बताऊंगा, पहले क्लियर करो। तो व्हाट विल बी द ऑप्शन? So the correct option for this question, what is the correct option for this question? Very good, what is the correct option? देखो यहाँ पे this will be the correct option। देखो, lithium does not form peroxide, so this is wrong option। Lithium does not form your superoxide, this is superoxide, this is wrong option। Lithium forms oxide, तो या ये हो सकता है या ये हो सकता है। And lithium again forms nitride, तो what will be the formula? अब देखना है lithium nitride की formula क्या है, Li3N। तो यहाँ पे LiN3। तो चेक करना है कौन सी फार्मूला होगी। कैसे करेंगे? बैलेंस करेंगे चार्ज। लिथियम पे कौन सी चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो एक लिथियम पे पॉजिटिव, 3 पे 3 1 3, तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज। इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन पे 3 माइनस होता है। तो दिस इज द करेक्ट फार्मूला। अगर यहाँ पे इसको देखेंगे इज इट करेक्ट, तो लिथियम पे 1 प्लस, एक नाइट्रोजन पे 3 माइनस, 3 पे 3 3 9 माइनस। सो दिस विल नॉट बी करेक्ट फार्मूला। तो करेक्ट फार्मूला को इनऑर्गेनिक में देखने के लिए आपको बैलेंसेस सेलेक्ट करनी पड़ेंगे, बैलेंसेस चार्जेस को बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर? वेरी गुड। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ओनली लिथियम फॉर्म्स
Why only lithium forms LiN3? Why not sodium form NaN3? Why not potassium forms KN3? Why not cesium forms CSN3 and rubidium forms RBN3? तो बेसिकली अगेन दिस डिपेंड्स अपॉन स्मॉल साइज ऑफ लिथियम. यहाँ पे जो आपका लिथियम है आयन जो है दैट्स लिथियम प्लस N, ओ सॉरी मैंने गलत देखा, दिस इज L3N है, सॉरी दिस इज L3N, दिस इज Na3N and this is K3N, this is CS3, so that the charge is balanced. तो देखो यहाँ पे आपका जो आयन है दैट्स लिथियम प्लस, यहाँ पे सोडियम प्लस है, यहाँ पे पोटेशियम प्लस है, यहाँ पे सीजियम प्लस है. दिस इज 3 times, this is 3 times, this is 3 times, this is 3 times. And the second ion in this case is N3. Second ion in this case is N3 minus, यहाँ पे भी N3 minus, यहाँ पे भी N3 minus, यहाँ पे भी N3 minus. जो मतलब यहाँ पे anion है that is same in all the cases. जो इनमें anion है that is same in all the cases. Anion is same. अगर anion same है, what is the deciding factor? Deciding factor is cation. तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, what happens to the size of the cation? अल्कली मेटल्स में डाउन द ग्रुप जाओ, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, तो साइज इंक्रीज होता है ना, साइज आपका इंक्रीज होता है यहाँ पे. व्हाई? बिकॉज शेल नंबर इंक्रीज होता है. तो अगर साइज इंक्रीज होता है उसकी वजह से क्या होगा, देखो ये स्मॉल साइज्ड लिथियम आयन है, दिस इज स्मॉल साइज्ड नाइट्राइड आयन, दिस इज स्मॉल साइज. तो कुछ मैंने कहा था जो भी अल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन लैटिस फॉर्म, दे फॉर्म मेटल लैटिस. तो मेटल लैटिस के लिए जरूरी है मेटेलिक बॉन्डिंग होनी चाहिए. तो मेटल लैटिस के लिए जरूरी है जो साइज ऑफ द आयन्स होगा दैट शुड बी कंपेरेबल. So in this case, the size of the ions is comparable, and in these cases, the size of the ions is not comparable. So you can clearly say that the large sized sodium, potassium, rubidium ion does not form a good lattice structure with N3 minus. Clear? Clear हुआ? सब बच्चे बोलो why lithium only forms mine? This is not formed. This is not formed. This is not formed. सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हो गई. बिकॉज यहाँ पे जो साइज ऑफ N3 minus और Li plus का है that's comparable, or in these cases the size of the cation is very large compared to that of the anion. तो यहाँ पे वो परफेक्ट बॉन्डिंग नहीं होती. क्लियर? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हो गई. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था. वेरी गुड. तो नेक्स्ट आप चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे. कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 6, उसमें मैंने बोला था जो अल्कली मेटल्स हैं दे फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, दे फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. फॉर एग्जांपल अगर कार्बोनेट्स की बात करेंगे दे फॉर्म मेटल कार्बोनेट्स. जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा वो देखेगा हाउ दीज मेटल कार्बोनेट्स आर फॉर्म्ड, एंड दे फॉर्म मेटल बाइकार्बोनेट्स. मेटल बाइकार्बोनेट्स तो बेसिकली हमने उसमें देखा था मेटल कार्बोनेट की स्ट्रक्चर होती है, फॉर्मूला होती है M2CO3, एंड बाइकार्बोनेट की स्ट्रक्चर होती है MHCO3. सिमिलरली दे फॉर्म सल्फेट्स, तो सल्फेट की स्ट्रक्चर M2SO4, बाइसल्फेट की स्ट्रक्चर MHSO4. क्लियर? दे फॉर्म नाइट्रेट्स, तो नाइट्रेट की स्ट्रक्चर M2NO3. यहाँ पे दे फॉर्म आल्सो नाइट्रेट्स, नॉट बाई नाइट्रेट्स. ओके, so these are carbonates, these are metal sulfates, and these are metal nitrates. So these are metal bicarbonates, metal bisulfates, metal bisulfate. One more important point, they form halides of the type MX. मतलब for example NaCl, LiCl, for example मैं यहाँ पे लिखूंगा LiCl, NaCl, KCl, RbCl. These are the compounds जो हमने पहले ही डिस्कस किया है. अब हमें देखना है लिथियम में इनका डिफरेंट बिहेवियर कैसा है. तो अगर मैं हैलाइड्स की बात करूंगा पहले, अगर मैं हैलाइड्स की बात करूंगा अल्कली मेटल हैलाइड्स की, तो इनमें जो लिथियम के हैलाइड्स होते हैं, लिथियम हैलाइड्स दे आर कोवेलेंट इन नेचर. लिथियम हैलाइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर. लिथियम हैलाइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर. मतलब दे possess very high degree of covalent in nature.
तो जो भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड हेंस आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग 4 हैलाइड्स इज मोस्ट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सो इट इज लिथियम क्लोराइड। नाउ बात आती है व्हाई दे आर मोर कोवेलेंट इन नेचर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर एक बार फिर बताऊंगा। कोवेलेंट कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए फजन रूल अप्लाई करो। फजन रूल से आप कैटाइन को देखो, फिर एनाइन को देखो। अगर आपका कैटाइन स्मॉल है, एनाइन लार्ज है, तो उस कंपाउंड में मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो जिस कंपाउंड में मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है दैट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, because water is ionic compound, less soluble in water, that is less soluble in water। तो देखो अब यहाँ पे मेरे पास ये वाले हैलाइड्स है LiCl, मेरे पास ये वाले हैलाइड्स है LiCl, I have NaCl, I have KCl, and I have rubidium chloride, and I have cesium chloride as well। तो मुझे बताना है इनमें से सबसे कोवेलेंट कौन है। तो इनमें देखो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, this is cation, this is anion, 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 isn't it? Very good। हाँ, LiCl is most covalent। तो देखो, हाँ वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे anion सबका सेम है, isn't it? Anion is same in all the cases। anion जो यहाँ पे है that is same in all the cases। तो देखो यहाँ पे भी आपका anion Cl माइनस है, यहाँ पे भी anion Cl माइनस है, यहाँ पे भी Cl माइनस है, यहाँ पे भी Cl माइनस है, यहाँ पे भी Cl माइनस है। anion is same। तो अगर anion सेम है, दिस इज नॉट देन द डिसाइडिंग फैक्टर। तो डिसाइडिंग फैक्टर कैटाइन है। मोर कोवेलेंट के लिए कैटाइन स्मॉल होना चाहिए। तो कैटाइन हमारे पास सबसे स्मॉल किसमें है? लिथियम। डाउन द ग्रुप कैटाइन का मतलब साइज जो है दैट इंक्रीजेस। तो लिथियम इज स्मॉल, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम। तो मैं कहूंगा दिस इज मोर कोवेलेंट देन दिस, which is more covalent than this, which is more covalent than this। अगर मैं कहूंगा इनमें से सबसे ज्यादा आयनिक कौन है, so this is most ionic। जो आयनिक होता है that is more soluble in water। तो एग्जाम बेसिकली एग्जाम में पूछते हैं, कुछ हैलाइड्स देंगे आपको, बोलेंगे which is more order of solubility in water, या आपको बोलेंगे order of covalent character। this is again very very important। तो केमिकल बॉन्डिंग से ये कंसेप्ट आता है, फजन रूल्स वहां पे डिस्कस किया है हमने। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं कार्बोनेट्स को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बाद डिस्कस करते हैं कार्बोनेट्स को। वेरी गुड, टेक इट स्क्रीनशॉट, विल डिस्कस कार्बोनेट्स। हो गया? ये बात क्लियर हुई? पहले मुझे बताइए ये बात क्लियर हुई? Why halides of lithium are covalent? So this is the difference, that's why the anomalous behavior। So this is the difference, that's why the anomalous behavior। तो ये बात है anomalous behavior होता है, anomalous behavior is due to this। तो नेक्स्ट बात जो हमारे पास है, तो डिस्कस करेंगे नाइट्रेट को, या पहले डिस्कस करेंगे कार्बोनेट्स को। तो लिखो यहाँ पे कार्बोनेट्स अल्कली मेटल्स के Li2CO3, Na2CO3, A2CO3, Rb2CO3, देन CS2CO3। तो मुझे बता इन सब में से, इन सब कार्बोनेट में से सबसे ज्यादा या ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, लेट मी राइट इट, दिस इज A, दिस इज B, this is C and this is D। what is the order of solubility in water? पूछा गया क्वेश्चन है, order of solubility in water। वेरी गुड। तो देखो अगेन ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी हम आयोनिक कैरेक्टर पे देखेंगे। तो एनाइन इज सेम, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस। व्हाट इज डिसाइडिंग फैक्टर? कैटाइन। तो कैटाइन ये वाला हमारा स्मॉल है, कैटाइन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जिसका कैटाइन स्मॉलर उसके केस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो आयोनिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा है। सो द आंसर इज डी सी। कल भी इसको डिस्कस किया है इसलिए मैं जल्दी पढ़ाता, DCB। हाँ, लेकिन हमें एनॉमलस बिहेवियर को डिस्कस करना है। एनॉमलस बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए हमें क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो लिथियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है, रुबिडियम कार्बोनेट है, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? कौन सी स्टेबिलिटी? थर्मल स्टेबिलिटी।
थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। व्हाट इज मीन्ड बाय थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब अगर मैं इसको हीट सप्लाई करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसको हीट सप्लाई करूंगा तो क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर मुझे बता। अच्छा पेन चेंज करूं, कोई बात नहीं। थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर बता इनमें से कोई नहीं। इज दिस गुड, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर बता, इज दिस पेन गुड। थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर मुझे बता इन कंपाउंड्स का, इन कंपाउंड्स में थर्मली स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। आमिना गलत, आपने अच्छी तरह नहीं पढ़ा है। महक वेरी गुड, नीलोफर वेरी गुड, ओएस क्या बोलते हो। तो देखो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो अगेन मैं आज भी बताऊंगा, कल भी मैंने बताया था, जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी टीएस, इट डिपेंड्स अपॉन साइज बाय चार्ज, नॉट चार्ज बाय साइज, इट डिपेंड्स अपॉन साइज बाय चार्ज। तो जिसका साइज ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, तो यहाँ पे साइज इसका ज्यादा है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी डी सी बी ए। अगर कोई और इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता है, इस वाले कंसेप्ट को, इस वाले कंसेप्ट को, तो लेक्चर नंबर 06 को एक बार फिर देखिएगा। क्लियर, दिस इज थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, वेरी गुड। तो दिस इज थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो क्या मैं कहूंगा जो लिथियम कार्बोनेट है, लिथियम कार्बोनेट जो है, अगर मैं इसको हीट करूंगा इट विल readily decompose, all other carbonates are stable। तो ये जो लिथियम कार्बोनेट है इट readily decomposes, it readily decomposes। Now what is the reason why it readily decomposes? So lithium carbonate readily decomposes, lithium carbonate readily decomposes, it will give you lithium oxide Li2O, plus it will give you carbon dioxide gas, this will escape out। So what is the reason why lithium carbonate readily decompose? So in this case देखो, जो हमारा कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट इज अ लार्ज साइज्ड आयन, इट्स अ लार्ज साइज्ड आयन, एंड लिथियम इज अ स्मॉल साइज्ड आयन। अगेन जो इनके बीच में मेटल लैटिस बनेगा, दैट विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग मेटल लैटिस। तो यहाँ पे कैटायन का साइज भी बड़ा होना चाहिए, दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्टेबल, परफेक्ट लैटिस बनती है। यहाँ पे लैटिस स्ट्रक्चर अच्छी नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई इट रेडिली डिकम्पोजेस। क्लियर, क्लियर हुआ। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन साइज एंड चार्ज, दैट्स व्हाई थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन साइज बाय चार्ज, नॉट चार्ज बाय साइज। हाँ वो गाड़ी, अगेन हाँ आपको याद रहा है, मतलब ये गाड़ी मानो आप, ये ट्रैक्टर का टायर है, ये जो टायर है ये ट्रैक्टर का है, और ये टायर जो है जिस ये साइकिल का है। वो गाड़ी का क्या, वो गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसका एक टायर साइकिल का हो और एक टायर ट्रैक्टर का हो, बोलो खुद ही बोलो, वो खाक चलेगी क्या। एक्चुअली इनका साइज डिफरेंस जो है दैट्स वेरी लार्ज। क्लियर, इसी को कहते हैं वो गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसका एक टायर साइकिल का हो और एक टायर ट्रैक्टर का हो, चलेगी वो गाड़ी, वो गाड़ी नहीं चलेगी। तो क्या हम कहेंगे जो लिथियम के कंपाउंड्स हैं, हाँ सर वो खाक चलेगी, वेरी गुड, नेवर, वेरी गुड। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या हम कहेंगे जो लिथियम के कंपाउंड्स हैं, मतलब हमारे पास लिथियम कार्बोनेट है, हमारे पास लिथियम नाइट्रेट है, हमारे पास लिथियम नाइट्रेट है LiNO3, ये जो कंपाउंड्स है दे आर वेरी लेस स्टेबल टुवर्ड्स हीट। अगर मैं इनको हीट दूंगा दे रेडिली डिकम्पोज। सो लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस इनटू लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है याद रखने यहाँ पे। एंड लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोजेस इनटू लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 plus O2। These are gases, they will escape away, and this is the oxide that will be formed। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, an alkali metal nitrate, an alkali metal nitrate X on subjecting to heat gives monoxide, and it gives monoxide NO2
and a paramagnetic gas. And a paramagnetic gas. The formula of paramagnetic gas Y देखो. The formula of X and Y are. This is JEE type question. X and Y are. So this is JEE question because इसमें दो concepts लगेंगे. ये जो पैरामैग्नेटिक गैस मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपको MOT का कंसेप्ट लगाना है. Because according to MOT, oxygen is paramagnetic, isn't it? According to MOT, oxygen is paramagnetic because it contains odd electron. So the odd electron is present in pi star molecular orbital. Clear? So देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें X लेना है, नाइट्रेट. ठीक, तो मैं लिखूंगा XNO3. इसको मैं हीट करूंगा. It will give me oxide, means it will give me X2. This is alkali metal oxide. Plus it will give me NO2. तो बेसिकली आपको याद रखना है पैरामैग्नेटिक गैस कौन सा है. पैरामैग्नेटिक गैस इज ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन अब आपको पता है ये जो तीन कंपाउंड्स बनाता है, दिस इज ओनली द कंपाउंड्स ऑफ लिथियम नाइट्रेट. तो दिस X शुड बी लिथियम, नॉट एनी अदर अल्कली मेटल. क्लियर? हाँ, क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? दिस इज JEE टाइप क्वेश्चन. JEE में इनऑर्गेनिक में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस लाइक दिस. क्लियर हुआ? तो अगर मेरे पास सोडियम नाइट्रेट होगा, सोडियम आल्सो फॉर्म्स नाइट्रेट, बट सोडियम नाइट्रेट आपका डिकम्पोज होके NaNO2 बनाता है. इट डज नॉट फॉर्म इट्स ऑक्साइड, इट फॉर्म्स NaNO2 प्लस इट evolves ऑक्सीजन गैस. तो यहाँ पे आपका NaNO2 बनता है प्लस इट evolves ऑक्सीजन गैस. These two reactions are very very important. These two, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो. These two reactions are very very important. क्लियर? सबको क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो क्लियर हो गया. हाँ, वेरी गुड. तो कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स जो थे वो मैंने यहाँ पे लिखे, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखते हैं. बाकी इसमें वो पता है आपको, इनका मेल्टिंग, लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल्स. इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है. वो हमने टेबल में डिस्कस किया है इन लेक्चर 2. तो वो बातें हमें फिर से नहीं लिखनी है, वो मतलब दे आर कॉमन सेंस सेंटेंसेस वर देयर. ये जो है दीज आर वेरी गुड, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो एक और बात लिखो, जो भी लिथियम हैलाइड्स होते हैं, लिथियम हैलाइड्स, फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड, दे आर डिलिक्विसेंट्स इन नेचर. डिलिक्विसेंट इन नेचर. नाउ व्हाट इज डिलिक्विसेंस? डिलिक्विसेंट का मतलब क्या है? डिलिक्विसेंट का मतलब ये है दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मतलब दे विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स. हाइड्रेट्स बोले तो मतलब जब भी ये कंपाउंड बनेगा, जब भी आप लिथियम को हैलोजन से रिएक्ट करके लिथियम हैलाइड बनाओगे, फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड बनाओगे, तो इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे. these water molecules you call them water of crystallization as well. तो देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास लिथियम क्लोराइड है, तो इसके साथ अटैच होते हैं two molecules of water in the form of hydrates. This is called a hydrate formation. So whenever alkali metals are formed, alkali metal halides are formed, as in case of lithium chloride, usually hydrate formation takes place, means these halides of lithium, they have water molecules attached with them. Why? Because of high polarizing power. तो ये हमने पहले ही देखा है, because लिथियम के जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है वो सबसे ज्यादा है. बिकॉज लिथियम की जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है वो सबसे ज्यादा है. मैंने कहा था आपको लिथियम में 28 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे गेट अटैच्ड टू द लिथियम आयन. Isn't it? So this is important. तो बेसिकली आ सकता है एग्जाम में, अल्कली मेटल हैलाइड, हमारे पास लिथियम क्लोराइड है, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है, रुबिडियम क्लोराइड है. तो आ सकता है विच ऑफ देम विल फॉर्म हाइड्रेट. तो हाइड्रेट कौन बनाएगा? हाइड्रेट लिथियम बनाएगा बिकॉज ऑफ इट इज हाई पोलराइजिंग पावर. क्लियर? तो यहाँ पे हमने एनॉमलस बिहेवियर को खत्म किया. वेरी गुड. तो मुझे बोलो किसी को कोई क्वेश्चन है?
किसी को कोई क्वेश्चन है? हमने इसको खत्म किया ऑलमोस्ट एस ब्लॉक में। आप मतलब ग्रुप फर्स्ट में हमें 1-2 लेक्चर्स और हैं, उसके बाद ग्रुप सेकंड डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चे इसमें आज नए जुड़ गए हैं, तो मैं उनसे एक बार फिर कहूंगा कि आप एक बार एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करके देखो। तो बेसिकली वहां से बेसिक्स इसका स्टार्ट होता है, फिर आगे जाके ये सब कुछ आपको समझ में आएगा और यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो मुझे बता, किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? महक, महक, रियाज, अब तक कहाँ थी आप?